So today we are going to study the next topic, the last important topic of this chapter, and the name of the topic is factorization. अब सर ये factorization क्या होता है? Factorization क्या होता है? किस चिड़िया का नाम है? Let us try to understand this. Let us try to understand this from the basics that we have learned. हम बचपन से जानते हैं कि अगर एक नंबर 12 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, देन 7, 8, 9, 10 तो होता नहीं है, 12। ये 6 इस नंबर 6 के फैक्टर्स हैं। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो दीज नंबर्स आर ईदर इक्वल टू 12 और दे आर लेस देन 12। One case is there in which the number is equal to, in which the factor is equal to 12, whereas in the other cases, the factors are less than 12. So basically what happens is factorization is a polynomial. Factorization is a process. Factorization is a process in which I express my bigger polynomial. Bigger polynomial मतलब ऐसा नहीं कि वो इतना बड़ा polynomial होगा, नहीं. I'm expressing my polynomial of larger degree. I'm expressing my polynomial of larger degree into products of polynomial of lesser degree. बात समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है. It is a process in which I'm expressing my polynomial that is having a larger degree into polynomials which are having a lesser degree, or a degree which is equal to the given polynomial. In the case of linear polynomial, if I want to express it as a factor, I will have two polynomials whose degrees will be lesser and equal to this. For example, what I want to say, sir, अगर एक polynomial है मेरे पास 2x plus 6, now I want to factorize it. ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है. नाउ आई वांट टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल. कैसे फैक्टराइज करूंगा सर? आई कैन राइट दिस पॉलिनोमियल एज 2 कॉमन ले लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3. Now this 2 is also a factor of this polynomial, and this x plus 3 is also a factor of this polynomial. So I have expressed this polynomial into product of two polynomials such that the degree is either less than or it is equal to the given polynomial. For linear polynomial, it has to be equal, but for quadratic, biquadratic, cubic, it will be less than this. So linear polynomial is an exception where the, yes, बताइए सर. मींस जो x का जो कोफिशिएंट है, अगर वो मतलब फैक्टराइज नहीं हो सकता 6 से, मतलब सपोज 3 है और इधर 7 दिया हुआ है, 3x plus 7, तो सर उसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते ना? उसको फिर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, 3x उसको फिर वैसे ही छोड़ देंगे. that I will leave it as 3x plus 7 only. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस पॉलिनोमियल को दो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स में ब्रेक कर दिया, एंड दीज आर द टू पॉलिनोमियल्स. सर समझ में नहीं आया ये क्या है एक्सेप्शन? अभी तो हम बस टॉपिक पढ़ ही रहे थे, आपने स्टार्टिंग में ही एक्सेप्शन बता दिया. चलो देखो, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. कैसे करूंगा मैं ये बाद में बताऊंगा, मैं कैसे करूंगा ये इसका मेथड मैं बाद में बताऊंगा. लेकिन देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. एक मिनट रुक जा बेटा. हाउ आई विल डू दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे. बट here what I will say you that I can express this polynomial into two parts, that is x plus 2 and x plus 3. अब देखो, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री थी वो क्या थी? d was 2. इसकी जो डिग्री है क्या है? 1 है. इसकी जो डिग्री क्या है? वो भी 1 है. सो आई हैव एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल इनटू टू पॉलिनोमियल्स whose degrees are less than that of the given polynomial. This is what is the process of factorization.
क्या ये प्रोसेस क्या होता है ये समझ में आ गया? से यस और नो? Yes, sir. योर माइक हैज सम इश्यू. अभी जिन्होंने बोला था योर माइक हैज सम इश्यू, इधर डू समथिंग विथ इट और यू जस्ट स्विच ऑफ योर दिस माइक्रोफोन. वट एवर यू हैव द इश्यू आप चैट में बता सकते हो. योर माइक हैज सम इश्यू. Some earthing problem is there perhaps. Mic might be okay, but there is some earthing problem. ठीक है. तो ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया हमारा दिस थिंग, अपना हमारा प्रोसेस हमें समझ में आ गया. देखो बेटा, किसी भी काम को करने के लिए दो चीजें होती है. मुझे अपने घर से सेंटर पे आना है, आई नो दैट मुझे कहाँ जाना है. मुझे प्रोसेस समझ में आ गया कि डेली शाम को 3 बजे या 3:30 बजे या 2 बजे मुझे अपना बैग उठा के मुझे सेंटर पे आना है. दिस इज द प्रोसेस. हाउ आई विल बी डूइंग इट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट. Whether I am coming by walk, whether I am coming by public transport, whether I am coming by my transport, that is the method. So now we are going to study the method. सबसे पहले process clear होना चाहिए. Factorization is a topic in which some 80% of class 9th student face problem. This is what I am saying from my personal experience. 2 years back when I was posted somewhere else, I taught them factorization, but after studying factorization also they were not able to understand what was factorization. Last year also I faced this type of problem. So students have faced lot of problem in this topic factorization, और उन्हें बहुत डर लगता है factorization से. सच पूछो तो बहुत डर लगता है. डरने का नहीं है, करने का है. वो होता है ना, एक कहावत है ना, डर के आगे जीत है. डरो मत, करो, सारे सवाल सॉल्व होंगे. ये मेरा वादा है आपसे. कोई भी सवाल उठा के देख लो, वो सवाल सॉल्व होंगे. चलो देखते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस. प्रोसेस क्या है भाई, क्या करना है ये तो समझ में आ गया. अब कैसे करना है, नाउ वी मस्ट हैव टूल्स. तो जो द टूल्स दैट वी हैव इज फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हम हमारे एक्सप्रेशन में कोई भी कॉमन देयर कैन बी एनी कॉमन फैक्टर इन माय एक्सप्रेशन. जैसे कि अगर मैं एक एक्सप्रेशन बोलता हूं 3x² प्लस 9x प्लस से 27, ठीक है. नाउ आई कैन सी दैट 3 इज ऑल्सो देयर. 3 यहाँ पे भी है, 3 का एक मल्टीपल यहाँ पे भी है, 3 का एक मल्टीपल यहाँ पे भी है. इफ आई वांट आई कैन फैक्टराइज इट. I can take 3 common. So this will be 3 multiplied by x² plus 3x plus 9. यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स को ही कॉमन उठाते हैं. अब जैसे बोलो, मान लो यहाँ पे 3x plus 7 है. 3x plus 7 होता तो कोई ये भी बोल सकता था कि सर मैं तो 3 को कॉमन ले सकता हूँ, x plus 7 by 3 हो जाता. Normally we don't do like this. Normally we don't do like this. So now the factor, this can be factorized as 3 multiplied by x² plus 3x plus 9. But further you have to check कि कहीं इसको भी अपन फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ये कैसे चेक करेंगे, ये आगे आएगा. फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग. फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग में क्या होता है कि कुछ चीजें हमें कॉमन मिलती है, हम ग्रुप बनाते हैं. आई फाइंड फ्यू थिंग्स कॉमन हियर एंड देयर. Then further I go. Then further I start the method. I will explain it by examples. Then is factorization by making the perfect square. I can make the perfect square also. Perfect square बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, a² plus 2ab plus b². कहीं पे हो सकता है मेरे को इस तरीके से लिखा हो x² plus 2x plus 1. तो अब इसका जो फैक्टराइजेशन करना है, तो आई कैन सी दैट दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x plus 1 होल स्क्वायर. तो आई कैन स्ट्रेट अवे राइट दिस एज x plus 1 होल स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट इज एज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स. a² माइनस b² है, तो अगर यहाँ पे मान लो 6² माइनस 9 होता, तो आई विल राइट इट एज x plus 3 multiplied by x minus 3. ठीक, आगे चलो. Now factorization of a quadratic. Now the most important thing,
factorization of a quadratic polynomial by splitting the middle term. This is the crux of this chapter, the heart of this chapter. कैसे सर, कैसे करेंगे सर? यहां पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज you have a polynomial x square plus bx plus c. ठीक है, here the middle term is b, middle term का कोफिशिएंट is b, और जो लास्ट टर्म है वो है c. I have to find two integers p and q. I have to find two integers p and q such that p plus q is equal to b and p multiplied by q is equal to c. मैंने क्या बोला? दो integers. It can be anything. It can be positive, negative. It can be negative, negative. It can be anything. I have to find two integers p and q such that p plus q is equal to b and p multiplied by q is equal to c. Then finally I can, now उसके बाद जब ऐसे integers मिल गए तो I will express this, my required polynomial, I will express it like this. एंड फाइनली आई विल टेक द कॉमन टर्म. इन दोनों में से मुझे x कॉमन दिख रहा था तो x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस पी हो गया. यहाँ पे मुझे q कॉमन दिख रहा था तो q मल्टीप्लाइड बाई x प्लस q हो गया. फाइनली आई विल राइट इट एज x प्लस p मल्टीप्लाइड बाई x प्लस q. ठीक है, ये तो हो गया पहला प्रोसेस. दूसरा प्रोसेस क्या होता है? हमेशा चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं. हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होता है. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होता है तो उसे 1 बना देते हैं. बना दो सर. 1 कैसे बनाएंगे? पूरे एक्सप्रेशन को a से डिवाइड कर दो. पूरे एक्सप्रेशन को a से डिवाइड कर दो. नाउ व्हाट यू विल हैव? नाउ हियर वी हैव ए मॉडिफिकेशन. यहाँ पे p प्लस q इज इक्वल टू b, बट द प्रोडक्ट p इंटू q इज इक्वल टू c इंटू a. Then again you will solve, so you will get the result as ax plus p multiplied by ax plus q. We will solve lot of questions now, so don't worry about this. This is just the process. Next is factorization of an algebraic expression as the sum or difference of two cubes. हमें algebraic expression sum or difference of two cubes मिलेंगे. We have the standard formula. Then finally our friend a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. I can factorize it like this. ठीक है? So this was the theoretical part of factorization. Now let us move to the application part. Application part is always, it is going to be important. The first 2-3 questions I will solve for you. Next questions you have to solve, because I have not solved any of the example while solving the question. So I have not taken any of the example while telling you the theory. So I will explain 3 examples. Line by line I will explain 3 examples. Those who are able to solve, that's nice. Those who are not able to solve, please listen to me what is being taught. देखो, जो पहला एक्सप्रेशन है, that is 2a multiplied by x plus y minus 3b multiplied by x plus y. I came to this expression. It's directly given factorized only. एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट रुक जा. I came to this expression. I saw that there is x plus y here. I came to this expression. I saw that there is also x plus y. So I asked them, can you give me your x plus y? They said, okay, I can give you. So now I can write this expression as x plus y कॉमन ले लिया इसमें से, तो मेरे पास क्या बचा? x plus y कॉमन लिया तो मुझे यहाँ से भी मैंने x plus y कॉमन ले लिया, यहाँ से भी x plus y कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिला? x plus y multiplied by 2a minus 3b. खत्म. My polynomial has been expressed as product of two polynomials. खत्म कहानी. x plus y यहाँ पे भी था, x plus y यहाँ पे भी था, मैंने x plus y कॉमन ले लिया तो मुझे मिल गया x plus y मल्टीप्लाइड बाई 2a माइनस 3b. इस क्वेश्चन को करने से मुझे कुछ याद आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है.
एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी इंटीजर्स में, रैशनल नंबर्स में। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी Yes, हम sir. लोगों ने पढ़ी थी। क्या थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? a मल्टीप्लाइड बाई b, या ऐसे मत लिखो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 was written as 3 multiplied by 5 minus 2 which is equal to 9। आई होप कुछ लोगों को तो याद होगा। वही काम यहाँ Yes, पे sir. किया है। Yes, sir. x प्लस वाई मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो मुझे मिल गया ये। बाकी क्वेश्चंस तो सेम है, करके बताओ जरा, व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट यू आर गेटिंग? यू हैव ओनली 1 The मिनट फॉर second, दिस। यू the हैव ओनली second 1। part's answer is यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई को मैंने कॉमन ले लिया, नॉट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे देखो मेरे पास बचा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ये मेरे पास बचा। भाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो मुझे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मिला, और सेकंड वाले में मुझे 3 इंटू एक्स इंटू वाई मिला। अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना बेटा, don't multiply it because I want it in simplified form. So this will be x multiplied by x plus y multiplied by, ये देखो क्या हो जाएगा, x square plus y square minus xy. Now this cannot be further simplified, so your answer will be this one only, x plus x into x plus y multiplied by x square plus y square minus xy। अब जिनको ये समझ में नहीं आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कैसे आया, वो सुन लो जरा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, ओ सॉरी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, और माइनस थ्री एक्स वाई था, तो माइनस 3xy किया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर। sir, I got the same answer but simplified it further. नो, यू आर नॉट सपोज टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। आप कैसे, आपने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया, आपने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। आपने इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, फिर जो रिजल्ट आया होगा उससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यू विल रीच एट योर स्टार्टिंग पॉइंट ओनली। समझ में आया बेटा? आपने क्या किया, आपने उन दोनों को यहां तक आपका आया, फिर आपने इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, बट सिंप्लीफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। आपको इसे फैक्टर्स में तोड़ना है। आपको 12 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखना है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, 12 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो लिखते हो, वापस से 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 को आप 12 लिख देते हो। दिस इज योर मिस्टेक माय डियर फ्रेंड। I hope I have made my point clear, right? Let us move to the next question fast. चलिए इसकी बात करते हैं। Enough time has been given. What I will do is, Sir, may I say? एक मिनट बेटा, हाँ, let me finish. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 3a minus 2b, 2 multiplied by 3a minus 2b को I will take common। 2 multiplied by 3a minus 2b मैंने कॉमन लिया, तो मुझे क्या मिला, 4 multiplied by 3a minus 2b minus of 5। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व क्या करना है, हो गया 2 multiplied by 3a minus 2b multiplied by 12a minus 8b minus 5। That's it, खत्म। Yes, sir. है क्या इस सवाल में? एक एक लाइन का सवाल है No, यार। sir. चलो आगे चलो, आ जाओ भाई, इस सवाल में आ जाओ।
1 minute for both the questions. Time starts now. The first part we are going to discuss x square plus 1 upon x square plus 2 minus 2x minus 2 upon x. Very good. Interesting. Interesting. भाई एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, जस्ट ऐसे ही एक वेग आइडिया कहीं से उठते उठते मेरे दिमाग में आया, डुम। कैसे आया, क्या आइडिया है सर? सर आइडिया ये आया, कैन आई राइट दिस एज Sir, we can write it as x plus 1 the whole square. x square plus 1 upon x whole square plus 2 multiplied by x multiplied by 1 upon x minus of 2 common लेके can I write it as x plus 1 upon x? जस्ट एक आइडिया आया। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं सर नहीं लिख सकते तो मैं नहीं लिखूंगा। Sir, we can. जरा देख के बताओ, आप मत बताओ, और भी लोगों को बोलने दो। Yes sir, we can sir. वी कैन सर। Sir, I use the same method. थैंक यू सर। तो सर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ये कुछ लग रहा है। क्या क्या लग रहा है ये मेरे को? इसको देख के मेरे दिमाग की घंटी बज रही है। आप लोग को सुनाई दे रहा है? टिंग 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 सुनाई Yes दे रहा sir, है? a plus b the whole square. गुड। देखा, इसके दिमाग में भी घंटी बजी कि ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। बेटा इस तरीके से घंटी बजनी चाहिए। घंटी बजाओगे सवाल सॉल्व होंगे। आपके दिमाग की घंटी बजी, और घंटी बजी तो आपने इसको लिख दिया x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। बात अभी भी पूरी नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी वैक्सीन मिली है, वैक्सीन सबको लगाना बाकी है। माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। अब देखो जरा सर, क्या मैं इन दोनों से x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन ले सकता हूँ पहले टर्म से? Yes, और sir. दूसरे टर्म से क्या मैं x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ भाई। तो अगर मैंने दोनों में से x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखना जरा। x प्लस 1 बाई एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा, जब x प्लस 1 बाई एक्स इसमें से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मुझे x प्लस 1 बाई एक्स मिलेगा, और जब इसमें से कॉमन ले लिया तो मुझे 2 मिलेगा। फाइनली आई एम हैविंग माय डियर फ्रेंड x प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। खत्म। इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आगे सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. यस। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट की बात करते हैं सर। ओके, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होता है सर, ध्यान से समझने की कोशिश की जाए। सेकंड पार्ट में सर मैं काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं। क्या काम करता हूं कि सर जो पहले दो टर्म है ना, जो पहले दो टर्म है सर, उन दोनों टर्म में से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन ले लेता हूं, और सर जो दूसरे बात, जो सेकंड टर्म और जो थर्ड टर्म है, वहां से मैं y कॉमन ले लेता हूं। एक मेथड। दूसरा मेथड ये, आपका दोस्त बोलेगा यार ये लगता है ये सर तो सारे सवाल को रट के आ रहे हैं, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो कुछ और लूंगा, कुछ और कॉमन ले लो। चलो एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट मैनर, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि सर सब कुछ क्रैम करके आ रहे हैं, या आप लोग ये ना सोचो कि सारी चीजों को क्रैम ही करना है। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से जो कुछ भी कॉमन आएगा वो कॉमन लूंगा, और सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में से जो कुछ भी कॉमन आएगा वो कॉमन लेने जा रहा हूँ। देखो क्या कॉमन मिल रहा है। अगर आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माय डियर फ्रेंड, तो आई कैन टेक एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस y। Minus 5. ठीक है,
अब यहाँ पे बात करो, इन दोनों की बात करते हैं। सर मैं -5 कॉमन लेना चाहता हूँ, सर मैं -5 कॉमन लेना चाहता हूँ, क्योंकि +5 भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन बाद में फिर कुछ और करना पड़ेगा। सर -5 कॉमन ले लिया जाए, ले लो भाई। -5 कॉमन लेने का लॉजिक ये है कि हम नॉर्मली ये ट्राई करते हैं कि जो मेरा पहला टर्म हो वो पॉजिटिव हो। +5 कॉमन लेते तो ये हो जाता -(x² + 3x), वो अच्छा नहीं लगता, दैट डजंट सीम गुड व्हाइल राइटिंग द फाइनल आंसर। सो टेक -5 कॉमन। -5 कॉमन लिया तो क्या मिला, देखो यहां से तो सर x² + 3x मिल गया। अब ऑलरेडी मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे +5 लिखा हुआ है, मुझे -5 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -y। कैसे पता किया कि -y मिलेगा या +y मिलेगा? देखो यहाँ पे +5y था, कभी कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से डिवाइड करके देख लेना। +5y था, Because before 5 there is minus sign, so +5y था, equate मुझे it will be -5 minus. कॉमन लेना था, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, +5y डिवाइडेड बाय -5 that is equal to -5. You can do these small things to check your this thing, to check your solution if you are having any confusion in it. ठीक है, वैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या कॉमन लेना है, बट द आइडिया इज प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म कॉमन है, यहाँ पे ये वाला टर्म कॉमन है, फाइनली आई विल हैव x² + 3x - 5 multiplied by x² + 3x - y। खत्म, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, सो दिस वाज द मेथड वेयर हम लोग ग्रुपिंग से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस मूव अहेड। सर ये जो फोर्थ वाला था ना वो जरा लंबा था पर इजी था। लंबा कहाँ था यार, 2 ही लाइन में तो सॉल्व हुआ है। एनीवेज अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हाँ सर ठीक है लंबा था, कोई बात। यार देखो एक बात याद रखना, 10 आउट ऑफ 9 केसेस में जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना वो आसान होते हैं, और जो क्वेश्चन एक लाइन में लिखा रहता है ना वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। रीजन बीइंग, जो क्वेश्चन एक लाइन में लिखा रहता है उसमें मिनिमम इंफॉर्मेशन दी होती है, और हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मिनिमम इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं सॉल्व करते। I have to solve the question based upon the maximum information। मुझे क्वेश्चन को करेक्ट प्रूव करना होता है, मुझे क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करना है, तो जितना इंफॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से हम नहीं कर सकते। जहां नहीं दिया हुआ है वहां पे हम फिर डिफरेंट केसेस बनाते हैं कि एक केस ये हो सकता है उसमें आंसर ये होगा, एक केस ये हो सकता है उसमें आंसर ये होगा, एक केस ये हो सकता है उसमें आंसर ये होगा। आई कैन हैव 4, 5, 6 केसेस। मैंने एक एक लाइन के क्वेश्चन देखे हैं जिसके सॉल्यूशन 10 पेजेस के हैं, 4, 5, 6, 7, 8 इतने केसेस आते हैं, और बाद में फिर फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे? फाइनल आंसर विल बी द कॉमन आंसर ऑफ ऑल द 10 केसेस। एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट केस, जब अपन 12th में 11th 12th में आएंगे तब इसकी बात करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Sir, solved all 3. वेरी गुड, अदर्स? Sir, may I say first one? चल बता दे यार, आप हमेशा बोलते हो मैं आपको बीच में रोक देता हूँ, बता दो, चलो बताओ। Sir, -x - 5y the whole square. -x - 5y the whole square. -x - 5y का होल स्क्वायर, हाँ हो सकता है, Yes, sir. हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। Sir, second one. बताइए। सर मैं आई। Sir, रुक जाओ, सेकंड पर्सन जिसने बोला सर मैं आई वो बताइए। यस सर। बताइए। सर आंसर इज √2a + √3b स्क्वायर ओके होल स्क्वायर, सॉरी सर। ओके, हाँ जी, थर्ड पार्ट कौन बताएगा? sir, may I? नहीं आप नहीं यार, आप दो लोग तो बताइए। परी यू ट्राई थर्ड पार्ट ऑल्सो।
Okay, sir. Try third part. You have time. Try third part. Chalo, let us discuss the questions because time is very less. I want to Sir, finish. can I say the third part's answer? You want to say? Chalo, bolo. Sir, can I say? No, Yes, no, sir. no, The no, no. answer for Vishruth the will say. third part is, Adi, your sir, turn the will be answer, next. बताइए. sir, the answer for the third part is 5x plus 2y plus 3z whole square. No, sir, is wrong. You are wrong, beta. Sir, answer is 5x minus एक 2y मिनट, plus एक 3z मिनट, the whole एक square. मिनट. पहले उसे समझाने तो दो why he is wrong. उसे समझाने तो दो why he is wrong. आपने बोल दिया, मैंने भी बोल दिया he is wrong, but he should understand why he is wrong. बेटा द फॉर्मूला इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. आप तो यही वाला फॉर्मूला लगाया होगा. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ac. It is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे माइनस 2ab आ रहा है. ओह सॉरी, ये कहाँ गया भाई. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि माइनस में आ रहा है. -20xy माइनस 12yz आ रहा है. तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे. सोचो. Sir, can we take? No, यार wait यार. चलो, let us move to the first one. Let us move to the first one because I want to finish it before finishing the class. Now this thing, the first term can be written as 2 times of x minus y whole square minus of 2 times of 2 into x minus y multiplied by 3 into x plus y. मैंने क्या किया सर? मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया. क्या यूज किया? कॉमन सेंस. देखो क्या कॉमन सेंस यूज किया ये समझो. पहले तो ये समझो कि क्या यूज, क्यों यूज किया, क्या यूज किया, कैसे यूज किया, ये समझो. देखो अगर पहले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखता है. कैसे पता चला मुझे सर? मैं भी आपके जैसा ही हूं, मैंने भी इसे मल्टीप्लाई करके नहीं देखा, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि दिस कैन बी रिटन एज 2 times of x minus y whole square. This can be written as 3 times of x plus y whole square. बस पहले टर्म का स्क्वायर लिखा है, दूसरे टर्म का स्क्वायर लिखा है, बीच में कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब दिस विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा कुछ ना कुछ होगा. बस हो गया, खत्म सवाल. द सवाल इज दिस थिंग. अब नाउ आई विल राइट इट एज 2 times of x minus y minus 3 times of x plus y whole square, which will be equal to 2x minus 2y minus 3x minus 3y whole square, which is equal to minus x minus 5y whole square. अब बेटा एक बात मैंने आपको बताई थी ना कि जो पहला टर्म होता है उसको नॉर्मली हम लोग निगेटिव नहीं लिखते, अच्छा नहीं लगता है देखने में. तो कैन आई टेक माइनस साइन कॉमन हियर, -1 multiplied by x plus 5y का होल स्क्वायर. So finally I can write it as x Yes. plus 5y whole square. क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. लास्ट थिंग जो मैंने Sir, but I बताई. use different method. क्या बोला? Sir, I Sir. use different method to solve. You have used different method to solve. What you have used? Sir, I have taken x minus y as a and x plus y as b. Same thing. You have taken x minus y as a and x plus y as b. Finally, you also got a square minus b square, a square minus 2ab Yes, plus sir. b square. See, I have rewritten this expression Yes, sir. like this. I have rewritten this expression like this. बस और मैंने कुछ नहीं किया है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. भाई नेक्स्ट पार्ट जो है
मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे भी देखो वही चीज हो रही है, 2a²। भाई सर A plus सर B एक whole चीज square. बताइए, 2 को क्या मैं √2 लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली बेटा लिख सकते Yes, हो। sir. 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, बस हो गया, खत्म कहानी। दिस विल बी √2a होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √2a multiplied by √3b multiplied by plus of √3b का होल स्क्वायर। ठीक है, √2a होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ √2a मल्टीप्लाइड बाय √3b प्लस √3b होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू √2a प्लस √3b होल स्क्वायर। खत्म, खत्म सवाल। थर्ड पार्ट इन द लास्ट पार्ट, क्योंकि इसके बाद आई एम हैविंग अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। अब देखो भाई, इसकी बात करते हैं। दिस विल बी 5x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 3z होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 5x इंटू 2y माइनस, प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो, माइनस 2 इंटू 3z इंटू 2y प्लस प्लस 2 इंटू 5x multiplied by 5x multiplied by this thing, what was it, z, 3z। 3Z. ठीक है, लेकिन अभी जो है, ठीक है अब ये तो हो गया, लेकिन मेरे पास बेटा a² प्लस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, जहां पे सारे जो 2ab 2bc 2ca जो होते थे वो मेरे पॉजिटिव होते थे। हियर द प्रॉब्लम इज आई एम गेटिंग टू टर्म्स एज नेगेटिव। एक तो सर ये वाला टर्म निगेटिव मिल रहा है और दूसरा सर ये वाला टर्म निगेटिव मिल रहा है। अब समस्या क्या है, देखो दो नंबर का प्रोडक्ट कब निगेटिव होता है? जब दोनों में से एक And नंबर one of them निगेटिव is हो, negative. एक नंबर निगेटिव हो। यहाँ पे इधर 5x विल बी निगेटिव और 2y विल बी निगेटिव। दिस इज व्हाट आई हैव टू डिसाइड जुडिशियसली। सर अगर मैं 5x को निगेटिव लिखता हूँ तो ये माइनस ये वाला टर्म तो निगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, याद रखना। 5x और 2y दोनों एक साथ निगेटिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों एक साथ निगेटिव होंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सर अगर मैंने 5x को निगेटिव लिया तो ये वाला टर्म निगेटिव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सर एट द सेम टाइम अगर मैं 3z को निगेटिव लेता हूं तो ये वाला टर्म भी निगेटिव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सर मेरा 5x भी निगेटिव है, मेरा 3z भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट जो होगा वो निगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत खुशी की बात है। माय डियर फ्रेंड, फ्रॉम हियर यू कैन प्रोसीड इट इन टू वेज। मेथड नंबर 1 विल बी, you can write this expression as minus 5x whole square plus 2y whole square plus of minus 3z whole square। निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो भी पॉजिटिव होता है। माइनस 2 टाइम्स ऑफ सॉरी प्लस 2 टाइम्स ऑफ minus 5x multiplied by 2y plus 2 times of minus 3z multiplied by 2y plus 2 times of minus 5x minus 3z। So finally your expression will be minus 5x plus 2y minus 3z का होल स्क्वायर। अगेन एज आई टोल्ड यू, हम फर्स्ट टर्म को कन्वेंशनली निगेटिव नहीं रखते हैं, तो या तो इसे 2y माइनस 5x माइनस 3z का होल स्क्वायर लिख दो,
या माइनस साइन कॉमन ले लो, इट विल बी -1 मल्टीप्लाइड बाई 5x माइनस 2y प्लस 3z और पूरे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर. So finally I will have 5x minus 2y plus 3z का whole square. This is your method number 1. Method number, एक मिनट बेटा, एक मिनट, let me help you out. I will answer all your queries, don't worry. Method number 2 will be, पहले 2y को मतलब नेगेटिव. yes, method number 2. Sir, as y being the common, we can take y as negative. See, you can do it anyway. Again, I'm telling you, I don't want you to memorize. You can do the anyway, but the idea is the question should not change. You can do it anyway. The method number 2 is take y as negative. So it will be 5x whole square plus of minus 2y whole square. Take minute, what is the time? I should hurry. Oh my God. Plus of 3z whole square plus of 2 times of 5x minus 2y plus 2 plus of what was that? 2 times of 5x plus multiplied by 3z minus plus of 2 times of 3z minus 2y. Again, you will get the same expression, that is 5x minus 2y plus 3z whole square. Okay, so this was all about the thing. So I will stop here today and I will see you guys in the next turn. I'll see you guys in the next turn and we will probably start with this question only.